سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم موضوع پر ہوگی بات، ہوگا تبصرہ اور تجزیہ، اور دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو بوچھال پاکستان کی سیاست میں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ کتنا دور تک جائے گا۔ آنے والے طوفان کی آوازوں کو کہا جا رہا تھا کہ محسوس کیا جائے گا، نیب کی طرف سے انتقامی کارروائی کی بات کی جائے یا پھر بات کی جائے اصولوں پر جو احتساب کیا جا رہا ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں اور کتنا ہے فسانہ۔ 20 سپتمبر کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس نے ایک طرف حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی، اور اسی میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے لندن سے جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا گیا اسے بہت زیادہ تنقید کی گئی تو کسی جگہ سراہا بھی گیا۔ اس کے بعد آج شہباز شریف کی گرفتاری کیا اس تقریر کا نتیجہ تھی یا پھر حقیقتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 سے جب شہباز شریف کی گرفتاری شروع ہوئی اس کے بعد زمانوں تک کا سیزن شروع ہوتا گیا اور آج تک یہ چلتا رہا۔ احتساب عدالت میں شہباز شریف کی گرفتاری اور پھر اس سے پہلے احتساب کے نام پر جتنے بھی ریفرنسز دائر کیے گئے اس پہ نیب کس حد تک کامیاب ہوا یہ ایک اور بات ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ نیب کیونکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن 2009 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں میں تقریباً 3 ارب 68 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ کیسے ہوا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ صاف پانی کی بات کی جائے، اشیانہ کیس کی بات کی جائے یا پھر بات کی جائے 56 کمپنی کیسز کی، تو نیب کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ ہو کیا رہا ہے اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آج لاہور سیاسی گڑھ بری طرح بنا ہوا ہے، تمام سیاسی لیڈران اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں اور لاہور میں موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے، اب اس گرفتاری کے بعد پاکستان کی سیاست میں کیا بوچھال آئے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کیا موقف اختیار کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی متحد تو ہے لیکن وہ کس راستے پر جاتی ہے، یہ اب اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں جناب شہباز شریف صاحب، اور بات کی جائے نواز شریف صاحب کی تو ان کے دیرینہ ساتھی جناب پرویز رشید صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی السلام علیکم۔ جی سر بہت شکریہ آپ کا۔ پرویز صاحب، آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی گرفتاری لاہور میں نظر آئی ہمیں احتساب عدالت میں، جب شہباز شریف صاحب کی جو عبوری ضمانت ہے اسے خارج کیا گیا، تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ شاید جو 20 سپتمبر کی اے پی سی ہوئی ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے جس کے بدلے میں اپوزیشن کو دبانے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیونکہ لوگ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اس معاملات کو اس طرح ڈیل نہیں کر پا رہی تھی جس کے لیے حکومت نے دباؤ بڑھایا ہے۔ گزشتہ بہت سے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سندھ ہائی کورٹ کے اور پنجاب ہائی کورٹ کے بھی ایسے موجود ہیں جن میں واضح الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور بلکہ ججز نے یہ لفظ خود استعمال بھی کیا ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش تھی اس کے لیے شہباز شریف صاحب پر ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس دباؤ کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے موقف کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اس کی سزا انہیں بار بار دی جاتی ہے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اب ان کا بیٹا 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جیل میں، ابھی تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ اور اسی طرح شہباز صاحب کی یہ دوسری گرفتاری ہے۔ پہلی گرفتاری جو ان کی گئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک معلوم نہیں کہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو نیب کی طرف سے کی جاتی ہے اسی کا شاخسانہ ہے۔ اچھا، کہا سر یہ بھی جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہی شاخسانہ ہے، اب کیونکہ اے پی سی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں، اے پی سی میں جو انہوں نے تقریر کی، جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے ایک ریاستی ادارے کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہاں موجود جو لوگ تھے ان کا کہنا اب یہی ہے کہ جو سیاست میں بات چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وہ اسٹانس نہیں تھا جو لندن سے لیا گیا۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تقریر کے بدلے میں جو پریشر ڈیولپ ہوا وہ شہباز شریف اینڈ فیملی پر ہے؟
पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने किसी अदारे के बारे में कोई बात नहीं की है। ठीक है, ये अदारों के पीछे छुपने का रवाज जो है इसको भी खत्म होना चाहिए कि अगर मुझे किसी फैसले पर एतराज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अदालत के अदारे पर तनकीद करता हूँ। हाई कोर्ट फैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट में आप उस फैसले के खिलाफ जाते हैं। रोजाना हजारों मुकदमे होते हैं, जब एक फैसला अदालत करती है तो दूसरा फरीक जो है वो उसके खिलाफ अपील में चला जाता है। तो क्या वो अपील में जाने वाले को हम ये कहेंगे कि वो अदलिया के अदारे के खिलाफ है? इसी तरीके से अगर कुछ लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं और कुछ लोगों ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया है तो उनको तो ये कहा जा सकता है, लेकिन किसी तकरीर को आप ये नहीं कह सकते। नवाज शरीफ साहब ने एक असूल की बात की है, उन्होंने आइन पर अमल करने की बात की है। तो क्या आइन में ये लिखा होना कि कोई सियासत में जो अदारे हैं हिस्सा नहीं लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि आइन जो है वो कोई अदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने आइन पर अमल दरामद की बात की। एक तो इस चीज की वजाहत होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि इस बात का ऐलान किया था कि एपीसी ने जो फैसले किए हैं हमने उन फैसलों को सीमट किया, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैंने उन फैसलों को अब सीमट कर दिया, यानी पक्का कर दिया एपीसी के फैसलों को, और एपीसी के हर फैसले पर अमल होगा, ये भी उन्होंने ऐलान किया था। इसीलिए आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि वो एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए अपनी पार्टी की भरपूर तरीके से क़यादत कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ परवेज साहब आपके होने का फ़ायदा उठाना चाहूँगा, ज़ाहिर है आपके पास वक्त भी थोड़ा कम है, कि ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो नैब केसेस बना रहा है, जो रेफरेंसेस बना रहा है, शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ है कि कोई भी केस अभी तक नैब साबित नहीं कर सका। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1972 में मैं ताजिर था, और नैब भी कहता है कि जी 1972 के बाद अगर 2008 से लेके और 2000 अगर हम ये बात करें 18 तक, 2009 से 2018 तक, तो असासों में 3 अरब का इजाफा हुआ है। वो और बात कि नैब अभी तक साबित नहीं कर पाया। आप भी कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो ये ऊंट किस करवट जाके बैठेगा? क्या सियासी जो नुमाइंदगान हैं उनकी गिरफ्तारियां इस तरह होती रहेंगी, या फिर मजीद इस बात को कहीं आगे जाके रोकना होगा? काम की जिस सियासत का रिवाज मौजूदा जमाने में दिया गया है और जिस तरीके से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया है और एहतसाब को सियासत के लिए, सियासी गोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसने पाकिस्तान की सियासत के जमहूरी कल्चर को दागदार किया है। यकीनन जब किसी मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करते हैं तो वो रियासत खुद भी किसी न किसी दलदल में गिरने के लिए, आप ये समझें कि दलदल में पांव रख देते। तो पाकिस्तान ने एक दलदल में पांव रखे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इक्तिसादियात कमजोर हुई है। जब इक्तिसादियात कमजोर होती है तो फिर उस रियासत की सलामती के लिए भी सवाल उठती है। तो हमने इंतकाम की सियासत से रियासत की सलामती के सवालात जो हैं उनको उठा दिया है। ठीक है। अगर ये वाकई एहतसाब होता तो फॉरेन फंडिंग केस है, पिछले 7 साल से उसका फैसला नहीं हो रहा। एक वजीर है, उसकी ड्यूल नेशनैलिटी है, उसके 3-3 महीने की तारीखें पड़ जाती हैं, उसका फैसला नहीं होता। लेकिन अगर वो मुकदमे नवाज शरीफ के हों, वो मुकदमे अगर शहबाज शरीफ के हों, मुकदमे मुस्लिम लीग से तल्लुक रखने वाले किसी रहनुमा के हों, तो वो जिसको अब 16 की गिरफ्तार कहते हैं, 16 की गिरफ्तार से चल रहे होते हैं। लेकिन वही मुकदमे अगर तहरीक इंसाफ के गुजरा से हों और इमरान खान साहब के बारे में हो तो उनकी गिरफ्तार जो है वो जो स्टीम इंजन होता था उससे भी कम हो जाती। बिल्कुल सर। चलें, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि टाइमिंग को आप किस तरह देख रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है? जैसे आपने खुद कहा कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अब एपीसी के फैसलों पे जो लगी सिमट थे उस पर अमल दरामद कराने के लिए बिल्कुल आगे मूव फॉरवर्ड थे। अब सूरत हाल क्या होगी? तौर पर जी सियासी कारकुन के तौर पर मैं समझता हूँ कि सारे पाकिस्तान के सियासी कारकुन जो है किसी से भी आप पूछिएगा, पाकिस्तान के किसी भी सियासी कारकुन से आप पूछिएगा, वो आपको यही बात कहेगा जो मैं आपसे कहने लगा हूँ कि ये इन्होंने जलती पे तेल का काम दिया है। ठीक है।
वक्त अपोजिशन तहरीकें चलाने के लिए इब्तदा कर रही होती है, अगर हुकूमत उस वक्त पकड़ सकड़ का काम शुरू कर देती है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो तहरीक से फ्यूल मुहैया कर देती है तहरीक को। तो हुकूमत ने आज शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके एक फ्यूल जो है वो तहरीक को दे दिया है। इससे कारकुनों के जज्बात मुश्तिल होंगे, इसमें सियासी जमातें जो हैं जो जरा तहरीक से दूर थी वो भी तहरीक के ज्यादा करीब आ जाएंगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि टाइमिंग की आपने खुद जैसे बात कर दी है कि जल्दी पे तेल का काम इस वक्त हुकूमत ने किया है और नैब जो काम कर रहा है उसे आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नाम दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होती है, उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी जाती है। साथ हम देखते हैं कि एक और बड़ा फैसला आता है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर साहिबा की उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। तो लग तो ये रहा है कि माहौल अब किसी और तरफ जा रहा है। आप लोग का अब क्या एक तरीक़ाकार होगा, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि अब दोनों जानिब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक 11 अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार करना था। शुरुआत शहबाज शरीफ साहब से साथ हुई है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम मुस्लिम लीग में कुछ कारकुन ऐसे हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जैसे मैं भी हूँ, फिर हमारे एक और दोस्त हैं जवेद लतीफ साहब वो भी हैं, फिर इस तरह के और भी हमारे दोस्त हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता था क्योंकि हमें कहा जाता था कि हम ज्यादा तहरीक चलाने की बातें करते हैं। तो आप लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया है और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी अगर तहरीक के मामले में थोड़ा इंतजार करना चाहती थी तो आज उन पर फर्द जुर्म आयद करके आपने हमारा काम आसान कर दिया, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे परवेज़ रशीद साहब और खुशी तौर पर अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, अपना तबसरा पेश कर रहे थे और वाज़ेह तौर पर आ रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो एक तरीक़ाकार है वो तेज़ होता जा रहा है। आपने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि नैब पूरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत के कहने पर की जा रही हैं, ऐसा दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि जब एहतसाब की बातें की जाती हैं और सवालों के जवाब मांगे जाते हैं तो फिर ताख़ीर पर ताख़ीर और ताख़ीर पर ताख़ीर की जा रही होती है। ये जवाब भी देना होता है उन्हीं लोगों को जिन पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। बहरहाल टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने आसिफ अली भट्टी साहब से बात की, सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, बात की परवेज़ रशीद साहब से भी, तो दोनों मौक़िफ़ जानने के बाद अंदाज़ा यही हो रहा है कि हर ग्राउंड के ऊपर मैचेस तैयार हैं इमरान खान साहब को टफ टाइम देने के लिए। अब दोनों जानिब से प्रेशर मजीद बढ़ाया जाएगा। EPC जो 20 सितंबर को हुई उस पर जो फैसलों पे अमल दरामद की बात की जा रही थी अब उसे शायद तेज किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात जो लंदन से लगाए गए, कहा यह जा रहा है कि वो उसका एक रद्द अमल है जो इस वक्त शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर नजर आए। लेकिन बात वही है जो सवाल बार बार नैब पूछ रहा है, अदालतों में जमा करवाए जा रहे हैं कि आखिर 68 करोड़ के जो असासे जात हैं वो 2009 से और 2020 तक इस वक्त तक 3 अरब 68 करोड़ रुपए कैसे बन गए। 450% इजाफा सिर्फ शरीफ फैमिली के 4 अरकान में रहा और 950% इजाफा जो है वो सिर्फ सलमान साहब के अकाउंट्स में हमें नजर आए असाजात में कि इतना इजाफा होता रहा है। बहरहाल ये साबित करना हुकूमत का काम है, ये साबित करना इदारों का काम है और ये साबित करना डिफेंड करना उन लोगों का काम है जिन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत में मजीद क्या हलचल होने वाली है और आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।